Assalamu alaikum, this is Aisha from CEO Club Pakistan and you are watching CEO Today TV. So another show, another exclusive guest in Coffee with CEO. We have Mr. Ali Ahmed. He is the CEO of Rashid Sons Steel Mills Group and he is also the former chairman of Pakistan Steel Re-Rolling Mills Association. So over to you, sir. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Aisha, for coming here. It's an honor and privilege. You're most welcome, sir. Sir, कैसे हैं आप? Alhamdulillah. Thank you very much. Sir, just tell us about your professional educational background. Professional education background. I did my matriculation from Habib Public School. Spent 10 years over there. It's a wonderful institution. From first to matric, I did from Habib School. Then I went to DJ Science College. I did my pre-engineering from DJ Science College. After that, I went to Government Commerce College. I did my bachelor's in commerce. Got first position in Commerce College and fourth position all over in Karachi. MashaAllah. Then I did my master's in business administration from IBA. My batch is 1992. So the evening sessions. So in the morning I used to come to my office, and in the evening I used to go to the evening campus in Sadr and did my master's from there. Sahi. Yes. So, sir, you have a lot of experience and exposure. So, just tell us about how you landed as a CEO here, and what are the efforts behind it. Well, actually, steel is not something new to our family. My father used to import iron sheets from Japan way back in 1970s, but he has made his office in Lahore. But my uncles have a steel mill over here in Karachi. So when I was doing my graduation, the family thought that it's better to come into steel business rather than going into the textile, which was our principal business. So in 1990, we established this steel re-rolling mills, and I was the one who was taking all the initiatives. So it was a family business. My brother was with me at that point of time. But then it ended up like this, that in 1990, we established a very small unit with a small production capacity of like 15 tons a day, which is now alhamdulillah 200 tons a day, and journey of 32 years. और इस तरीके से जो है वो going on alhamdulillah. So it's inspiration from the family कि आप इस business में आए या फिर आप textile में जाना चाहते थे? इंस्पिरेशन भी थी. आई वॉज वेरी यंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, लेकिन उस टाइम फ़ायदा ये था कि कुछ मेरे अंकल्स जो थे वो कुछ इसके अंदर थे, स्टील इंडस्ट्री में, कुछ ब्रेकिंग इंडस्ट्री के अंदर थे. तो वो एक थोड़ा सा आपको जो है वो फैमिली सपोर्ट मिल जाती है कि थोड़ा सा कोई अगर लूप होल हो रहा हो तो उसके अंदर वो आपको पीछे से उनका बैकग्राउंड था उसका. तो उस लिहाज से मेरा ख्याल में मेरे लिए जो है वो ब्लेसिंग थी कि मेरे जो है वो वेरी क्लोज रिलेटिव्स एंड अंकल्स वर देयर इन दैट बिजनेस. तो उसकी वजह से स्टील को जो है वो ऑप्ट किया, और अल्लाह ताला ने लिखा हुआ ही है कि जो लोहे के अंदर हाथ डालता है और ईमानदारी के साथ काम करता है तो फिर अल्लाह ताला उसको मायूस नहीं करता है. आई हैव अ वेरी फर्म बिलीव इन दैट. बेशक. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी सिंस 32 years. तो व्हाट वाज द वेरी हार्ड टाइम यू थिंक? The hard time was, I think, first was 1994. And the second one was in 2008, and the third one is 2019. तो मैं आपको अगर शुरू से स्टार्ट करूं तो जब हम लोगों ने ये स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश की 1990 में, तो कराची में 63 यूनिट्स थे. सही. पाकिस्तान में तकरीबन इस टाइम 450 से 500 यूनिट्स हैं. 63 यूनिट्स थे 1990 में, लेकिन 93-94 के अंदर थोड़ा सा रिसेशन आया और सिर्फ कराची में 13 यूनिट जो है वो काम कर रहे थे. अच्छा. तो उसके अंदर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की जो है वो चल रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जो है वो मुश्किल वक्त को गुजारा. और उसके बाद फिर इंडस्ट्री ग्रो होना शुरू हुई. 2008 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा रिसेशन आया, और उसकी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा लोगों ने नुकसान किया. तो वो एक बड़ा टफ टाइम था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी अल्लाह ताला ने जो है वो निकाल दिया. और उसके बाद तीसरा जो टफ टाइम आया वो कोविड के दिनों के अंदर आया, जब पूरी दुनिया ही आपकी जो है वो होल्ड पे थी. तो उस टाइम जो है वो तो 3 मेरे ख्याल में से जो है वो सीजन देखे. So what was the toughest decision in 3 times जैसा कि आप डिस्कस कर रहे हैं? तो कौन सा toughest decision आपने लिया in specific industry in your company? एक तो हिम्मत नहीं हारी. सही. मतलब अगर आप किसी भी चीज को काम को दिल लगे के साथ करते हैं ना, तो आपने फिर कहना होता है कि मैंने ये काम करना है. बिल्कुल. तो अगर आपके अंदर ये लगन है और वो हिम्मत है तो अल्लाह ताला भी फिर मदद करता है.
दूसरे अपने आप को कुछ कंट्रोल किया, कुछ डाउन साइजिंग की, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस थे उनको कर्टेल किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम को बंद नहीं किया। क्योंकि अगर आपने एक दफा काम को बंद कर देना तो फिर उसको चलाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे नजदीक ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप काम को, अगर कोई हालात ऐसे हैं तो यू कैन श्रिंक इट टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन आप उसको बंद ना करें। अल्लाह ना करे कि बिल्कुल ही कोई मजबूरी आ जाए। अदरवाइज तो मेरा ख्याल में उसी के अंदर हम लोग चलते रहो। जो 13-14 लोगों ने जिस टाइम सर्वाइव किया वो माशाल्लाह फिर उसके बाद उन्होंने बड़ी ग्रो की और सारी चीजें रही। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द स्पेसिफिक चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज इन दिस टाइम, इन दिस स्पेसिफिक फील्ड? इस टाइम पोस्ट कोविड अगर आप बात कर रही हैं, पोस्ट कोविड के अंदर स्टील के अंदर तो बड़ा मेजर चेंजेस आए हैं। मैं आपको बताऊं कि जो हमारा प्रोडक्शन स्टाइल था, जो हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज थी, वो ऑल टुगेदर चेंज हो चुकी हैं। मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि 1 मिलियन टन के जो प्लांट्स हैं, अगर हम पाकिस्तान स्टील मिल को लें तो उसके पास आज कोई 12,000 की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है। दुनिया के अंदर जो आज 1 मिलियन टन के प्लांट्स हैं उनके अंदर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो 300 से 350 है। तो दुनिया बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बिल्कुल तब्दील हो चुकी है, एंड सो इज इन अवर स्टील इंडस्ट्री। तो हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी जो है ना वो डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। तो नाउ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोपिंग अप। एक तो चीज़ महंगी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और दूसरे आपको जो है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ, वक्त के साथ चलने के लिए जो है वो कदम पे कदम चलाना जो है वो आपको बिल्कुल उसके साथ रहना पड़ता है। We have to be updated every time. ऐसी स्ट्रेटजीज हो। So what are your after 5 years plans, क्या हैं आगे ले जाने के लिए कंपनी? मैं इस टाइम जो है वो यहाँ पर we are producing all types of steel bars that is used in construction. जी। चाहे वो डिफॉर्म ग्रेड 60 स्टील बार्स हैं, चाहे वो ट्विस्टेड स्टील बार्स हैं। मेरे पास 3 प्लांट्स हैं, तो तीनों प्लांट्स के ऊपर वो हर तरीके के साइजेस बनते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होते हैं। लेकिन व्हाट आई लाइक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज द मेल्टिंग इंडस्ट्री। तो मेरी अपनी फर्नेस नहीं है जिसके अंदर हम उसको मेल्टिंग कर सकें। तो इफ यू आर आस्किंग मी व्हाट इज माई प्लान फॉर द नेक्स्ट 5 years, आई वुड से कि हमारी जो है वो मेल्टिंग इंडस्ट्री अपनी हो, ताकि हमें डिपेंडेंसी ना हो रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए। So, sir, what are the leadership qualities you think that a leader must have? Honesty, integrity, ऑनेस्टी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, और दूसरों को कंफर्ट लेवल देना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो की सक्सेस लर्निंग क्या देंगे आप? बिकॉज एज यू सेड दैट 3 बार ऐसा हुआ, और यू नो डिफरेंट टाइम्स पे सिचुएशंस ऐसी हो जाती क्रूशल कि आपको टफेस्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करें। तो आप ऐसी कौन सी 3 चीजें जिसकी वजह से आप स्टिल स्टैंड आउट इन दिस कंपनी एंड वर्किंग यू नो वेरी वेल? तो 3 की सक्सेस क्या है? कमिटमेंट। अगर आपने किसी से कमिटमेंट कर लिया है, आपने उनको सही क्वालिटी दे रहे हैं और उनको सही प्राइस दे रहे हैं और सही वेट दे रहे हैं, यू विल नेवर लूज, यू विल नेवर लूज। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग आए, वो बड़ा शॉर्ट टर्म बेनिफिट देखते हैं। मैं शॉर्ट टर्म बेनिफिट कभी नहीं देखता हूँ। मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वो 30 years 32 years पुराने ही क्लाइंट्स हैं मेरे, जो चल रहे हैं। वो सिर्फ एक कॉल अवे होते हैं मुझसे। उनको मालूम है कि अगर कोई चीज कह दी तो चाहे मार्केट ऊपर हो रही है, मार्केट नीचे हो रही है, वट एवर द कमिटमेंट इज, इट विल बी ऑनर्ड। ठीक है, दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली इंस्पायरिंग। अच्छा, तो मुझे बताइएगा आपका कोई रोल मॉडल फैमिली के अलावा? कोई रोल मॉडल? देखिए, रोल मॉडल तो बीइंग अ मुस्लिम हजरत मोहम्मद के अलावा किसी का कोई नहीं हो सकता। तो वो तो एक बिल्कुल अपनी जगह पर है। एज फार एज माई इंडस्ट्री इज कंसर्न एंड यू आस्किंग अबाउट अ रोल मॉडल, आई वुड से मिस्टर अब्बास अकबर अली फ्रॉम Raleigh Steels. अच्छा। He is a role model for, I think, all the steel industry. He has taken up the steel industry to the next level in Pakistan. Gem of a person, बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह है, बड़ी इज्जत करते हैं। What are your achievements that you really proud of? Achievements I'm really proud of. I became the youngest chairman of All Pakistan Steel Mill Association. That's great. It's the industry, it's an association which is looking after the affairs of the steel industry all over Pakistan. So I was chairman back in 2006. So I was the youngest one, and I was the youngest vice chairman as well back in 1996.
तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ी सी मेरी अचीवमेंट थी कि इतने सारे सीनियर हमारे कुलीग्स ने जो है वो मुझ पर भरोसा किया और मुझे जो है वो अपना एज अ चेयरमैन चुना था 2006 में. देन आई रिमेन चेयरमैन इन 2010 एज वेल. उसके अलावा अचीवमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल में मेरी इंडस्ट्री के अंदर जो मेरी रिस्पेक्ट है, जो लोग मेरे कोलीग्स हैं वो मुझे जो रिस्पेक्ट देते हैं, मेरा ख्याल में वो मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है. एंड यू वर नॉमिनेटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ साइट एज वेल. साइट एसोसिएशन के अंदर मेरा बड़ा वो रहा है कंट्रीब्यूशन को तकरीबन 10 साल. 2010 से लेके 2020 तक मैं साइट एसोसिएशन के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ. और हमारी जो है वो सबसे पहले हमारे पैट्रन चीफ सिराज कासिम तेली साहब इंतकाल हो गया उनका पिछले साल इसी कोविड के उसमें. तो उसके बाद जुबैर मोतीवाला साहब जो है वो उसको लीड कर रहे. मैं जो वॉइस ऑफ इंडस्ट्री हमारा साइट एसोसिएशन का मैगजीन है, मैं उसका एडिटर इन चीफ रहा हूँ कोई तकरीबन 4 साल. उसके अलावा फ्यूल एंड पावर सब कमेटी, लेबर सब कमेटी, EOBI और सोशल सिक्योरिटी की सब कमेटीज, इन सब का मैं चेयरमैन रहा हूँ कोई मेरे ख्याल में 6-7 साल. फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री आयरन स्टील के अंदर मैं सीनियर वाइस चेयरमैन रहा हूँ सब कमेटीज का. पिछले साल तक मैं साइट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था. जुबैर भाई इज बिग ब्रदर, उन्होंने मुझे कहा भी कि तुम जो हो वो कोई पोजीशन जो है वो ले लो, लेकिन मैं समझ रहा था कि मैं थोड़ा सा काम से जो है वो सही इंसाफ नहीं कर सकूंगा, तो मैंने उनसे माजरत की है. एंड ही इज काइंड इनफ कि उन्होंने मेरी उसको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया. तो सर जस्ट टेल अस समथिंग अबाउट आवर अडल्ट्स, आवर द पीपल हु आर यंग, उनको आप थोड़ा सा ये बताएं कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज इन दिस स्पेसिफिक स्टील इंडस्ट्री. क्यों आए वो इस इंडस्ट्री की तरफ? कि मैं आपको बताऊं, स्टील इंडस्ट्री हमारे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली द पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इज अमंग द लोएस्ट एज कंपेयर टू द नेबरिंग कंट्रीज. ये अभी कुछ 3-4 सालों के अंदर हमारी पर कैपिटा कंजम्पशन बढ़ी है और हम लोग कोई तकरीबन, मैं अगर वैसे बताऊं फिगर्स के अंदर, तो 40 लाख टन हमारी साल की जो है वो यूजुअल कंजम्पशन थी 4-5 years बैक, जो कि अब 70 लाख टन से जो है वो ऊपर हो चुकी है. तो अपॉर्चुनिटीज तो बहुत ज्यादा है. और जिस तरह मैंने आपको बताया कि अब सारे प्लांट जो हैं वो BMR के अंदर जा रहे हैं. तो BMR के अंदर जब आप जाते हैं तो आप नई टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आते हैं. और मैंने भी आपको बताया कि हमारे इस काम के अंदर जो प्रोड्यूसिंग टेक्निक्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं. तो नई जनरेशन के लिए बिल्कुल इसके अंदर बड़ा स्कोप है. और पहले तो ये बहुत ज़्यादा लेबर इंटेंसिव थी, लेकिन अब वो लेबर इंटेंसिव से टूवर्ड जो है वो टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ जो है वो जाती जा रही है. और वो अगर आएंगे तो उसके अंदर काम में थोड़ा सा मेहनती काम है, ये गर्म काम है, थोड़ा सा मेहनती काम है, लेकिन बड़ा अच्छा काम है. और जो उसको समझते हैं वो इसको एंजॉय करते हैं. मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ अपने काम के ऊपर आता हूँ, तो आई लव कमिंग इन द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग. और इस तरीके से जो है वो जिंदगी गुजर रही है. तो आपने कहा जैसे कि गर्म काम है, बहुत मेहनती काम है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं अपने स्ट्रेस को या एंगर को? देखिए, अगर स्ट्रेस मैनेजमेंट CEO ना कर सके ना, तो वो फिर CEO रह नहीं सकता. बिल्कुल बिल्कुल. If someone can burst into anger and he is running and organizing, he cannot do that. मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहला काम ये करता हूँ कि मैं पानी पी लेता हूँ. सही है. उसके बाद अगर जिन साहब के ऊपर गुस्सा आया है उनको कुछ नहीं कह सकता, तो मैं वहां से उठ के चला जाता हूँ. अच्छा. तो दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि उस टाइम जब इंसान गुस्से में होता है तो वो उसको नहीं मालूम होता कि वो क्या कर रहा है. तो सबसे बेहतर बात है कि उसके अंदर आप उसको अवॉइड कर लें. बिल्कुल. तो या तो उनको रुखसत करने के लिए कह दें या खुद रुखसत हो जाए. सही. तो ये सबसे बेहतर रहता है मेरे हिसाब में. सही है सही है. हमने CEO का नाम भी चेंज कर दिया ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से रख दिया है चीफ एनर्जाइजिंग ऑफिसर. ठीक है, जैसे कि आपने बताया कि मैं हूँ. जी जी. अच्छा, और कोई ऐसी इंस्पिरेशनल बुक हो जो आप एज अ लीडरशिप पे रेकमेंड करना चाहें? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैं तो वो जब मैंने बस बैक इन माय यूनिवर्सिटी डेज, तो वो मैनेजमेंट के अंदर हमने लेसन पढ़ा था पोस्ट कॉप, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिव्यूइंग एंड बजटिंग. जी. तो मैनेजर वो आदमी रह ही नहीं सकता अगर वो पोस्ट कॉप के ऊपर जो है ना वो काम नहीं कर रहा है. तो मैं तो उसके ऊपर बिल्कुल जो है ना वो करता हूँ. लेकिन हैविंग सेड दैट, आपको जो है ना वो कॉन्करेंट कंट्रोल मेजर्स से ज्यादा प्री कंट्रोल मेजर्स के ऊपर जो है ना थोड़ा सा वो करना चाहिए ना. अगर आप उसके ऊपर कर रहे हैं तो आप जो है ना चीजों को बेहतर तरीके से लेके जा सकते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे इम्पोर्टेंट है एक CEO के लिए?
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए कि उसके जो पीयर्स है, उनका जो स्टाफ है, वो किस माइंड फ्रेम के अंदर जा रहे हैं, एंड ही शुड हैव दैट क्वालिटी कि वो उसको पढ़ सके, उनको माइंड को पढ़ सके, और उसके बाद उसमें किस तरह इमोशनली उसके ऊपर जो रिएक्ट करना है वो उसको मालूम होना चाहिए। ये मेरे ख्याल में सीईओ का जो है ना वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट उसके जो है ना वो एस्पेक्ट है उसके ऊपर जाने के लिए। Such a successful person you are as a CEO in this company. So कुछ ऐसा आपके plans है after 5 years or 10 years? Where do you see yourself with your company? I told you before कि मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी सी एक्सपेंशन में जाऊँ, मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन में चला जाऊँ। BMR के अंदर मेरा प्लान यही है कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी तो मैं इंशाल्लाह फिर अपनी जो है इंडस्ट्री को जो है वो हम CMR जो कि कंटिन्यूस रोलिंग प्रोसेस है उसके अंदर हम लोग जो है वो चले जाएंगे, और इंशाल्लाह जो है वो अपनी फंड्स जो है वो भी हम कर लेंगे ताकि डिपेंडेंसी ना रह जाए रॉ मटेरियल एक्वायर करने के लिए। अच्छा, एक थोड़ा सा एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगी रिलेटेड टू योर इंडस्ट्री कि व्हाट आर द थिंक स्पेसिफिक थिंग्स और पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट शुड मेक फॉर दिस स्टील इंडस्ट्री कि आपकी ग्रोथ आगे अच्छी हो जाए और डेवलपमेंट आगे अच्छी हो जाए, स्टील सेक्टर के लिए बहुत ईज हो जाए आगे। इसके अंदर इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है हमारे पास, वो काम कर रहा होता है, वो हमसे हर साल सजेशंस लेता है और इंडिविजुअली भी लेता है, फ्रॉम एसोसिएशंस भी लेता है। हमारे पास स्टील की अगर आप बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान स्टील रीरोलिंग मिल एसोसिएशन है, पाकिस्तान स्टील मेल्टर्स एसोसिएशन है, पाकिस्तान शिप ब्रेकर्स एसोसिएशन है, और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ स्टील फॉर लार्ज प्रोड्यूसर्स है। तो ये 4-5 हैं, तो वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स को वो इन्वाइट करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, नई पॉलिसी डेवलप करने के लिए क्या उसके अंदर इफ्स एंड बट्स हैं उनको हम रिमूव करते हैं और अगले साल के लिए हम प्लान को चॉक आउट करते हैं। अच्छा, सही। तो सर इट्स अ वेरी हेल्दी डिस्कशन। तो at the end of our discussion I request you to give an optimism message to our youth and generation. यूथ के लिए मेरा मैसेज ये होगा कि जो हमारी नई नस्ल आ रही है ये बात जहन में रखें कि मेहनत के बगैर कोई चीज़ आप हासिल नहीं कर सकते। इंसान कामयाब बनना चाहता है, लेकिन कामयाब बनने के लिए आपको अनथिक मेहनत, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और अपने आप को आपने साबित करना है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपकी पहचान क्या है, आपका मुल्क क्या है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ अपने मुल्क, अपनी पहचान को आइडेंटिफाई को बिल्कुल सही तरीके से उनको बताएं कि दे शुड नो दैट यू आर अ पाकिस्तानी एंड यू आर अ प्राउड पाकिस्तानी। यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मेहनत लगन के साथ काम करें। मेहनत लगन के अंदर अल्लाह ताला कभी आपको मायूस नहीं करेगा और कामयाबी आपके कदम चूमेगी। वो थोड़ी सी स्लो ज़रूर है प्रोसेस, लेकिन उसके नताइज जो है ना वो बहुत दूरस होते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for your time. It's all pleasure having you.